آغاز کرتے ہیں آج کی بڑی خبر سے۔ قیاس آرائیاں ختم، افواہیں دام توڑ گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مدت پوری ہونے پر عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں فوج سیاست سے دور ہے، دور ہی رہنا چاہتی ہے۔ مضبوط معیشت کے بغیر قوم اہداف حاصل نہیں کر سکتی، معیشت کو بحال کرنا اولین ترجیح ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ سپہ سالار کا بڑا بیان، افواہوں کو لگام ڈال دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2 ماہ بعد اپنی دوسری 3 سالہ مدت پوری ہونے پر عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں غیر رسمی گفتگو میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا، مسلح افواج خود کو سیاست سے دور کر چکی اور دور ہی رہنا چاہتی ہے۔ ظہرانے سے خطاب میں آرمی چیف کا کہنا تھا، ملک کی بیمار معیشت کو بحال کرنا معاشرے کے تمام طبقات کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ مضبوط معیشت کے بغیر کوئی سفارت کاری نہیں ہو سکتی۔ دورہ امریکہ میں آرمی چیف کی ملاقاتیں جاری ہیں۔ پینٹاگون کا دورہ کیا، جہاں امریکی سیکرٹری دفاع، قومی سلامتی کے مشیر اور ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے بھی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک میں سیلاب کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب زدگان کے ریسکیو اور بحالی کے لیے دنیا بھر کی مدد ناگزیر ہے۔ آرمی چیف نے امداد اور حمایت پر امریکی حکام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملک کے لیے خدمات ہمیشہ قابل تعریف رہی۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے اپنی انتھک کوششوں سے فوج کا مورال بلند کیا۔ فوج سیاست سے دور رہے گی، مدت پوری ہونے پر عہدہ چھوڑ دوں گا۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے دفاعی تجزیہ کار عابد لطیف کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن فوج نے ہمیشہ غیر جانبداری کا ثبوت دیا۔ انڈائریکٹلی کوشش تو گئی کہ بیچ میں انوالو کیا جائے، لیکن ہمیشہ سے آرمی نے اپنی جو اے پارٹیسن ہے اور اے پولیٹیکل جو نیوٹرلٹی ہے، نہ صرف اس کو اسٹیبلش کیا بلکہ پروو بھی کیا۔ دفاعی تجزیہ کار حارث نواز نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف نے فوج کے لیے بہترین کام کیا ہے۔ انسداد دہشت گردی آپریشن، فلڈ ریلیف آپریشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اتنا کام فوج کے لیے کیا ہے میرے خیال میں بہت کم لوگوں نے کیا ہے۔ وہ موسٹ پاپولر لیڈر ان پاکستان آرمی، ایون لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، انہوں نے انت تک کوشش کی ہے۔ اب آپ چاہے وہ فلڈ آپریشن ہوں، نیشنل کلیمٹیز ہوں، یا آپ کی اپنی آپریشن ٹریننگ ہو، یا ایٹ ٹائم اس کے ساتھ ہر جگہ پر وہ آگے موجود ہوتے تھے۔ آئی تھنک یہ ان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے اور اس کے فوج کا مورال بہت ہائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دوسرے ملکوں کے ملٹری سربراہان سے بہترین رابطے اور تعلقات رہے ہیں۔ ان کے کام سے فوج کا مورال بلند ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ سما کے پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ملک سے غیر یقینی کے خاتمے کے لیے آرمی چیف کے تقرر کا فیصلہ جلد ہو جائے تو ہی بہتر رہے گا۔ کب تک توقع رکھیں کہ آپ نومینیٹ کریں گے نیکسٹ چیف کو؟ دیکھیے یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اب میرے خیال ہے نومبر کے آخری ہفتے میں موجودہ چیف ریٹائر ہو رہے ہیں جی، تو اس سے پہلے فیصلے کئی مہینے پہلے بھی ہوئے ہیں اور آخری 2 دن میں بھی ہوئے ہیں، تو اس کا کوئی ٹائم فریم کا تعین نہیں ہوتا، لیکن آپ کسی وقت بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ 6-7 ہفتے رہ گئے تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ نومینیٹ کر دیں نیکسٹ چیف کو۔ جی میرا بھی خیال ہے کہ اس وقت جو اسپیکولیشن شروع ہو گئی ہے یہ منفی اثرات رکھتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میری ذاتی رائے ہے کہ پرائم منسٹر جلدی فیصلہ کر دیں تو بہتر ہوگا، کلیئرٹی آ جائے میں ابھی جی، تاکہ یہ جو ساری ایک انسرٹنٹی پیدا ہو رہی ہے ختم ہو جائے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز براستہ دوحہ لندن کے لیے روانہ ہو گئی۔ مریم نواز کے مطابق ان سے انتظار نہیں ہو رہا کہ کب طیارہ اترے اور وہ اپنے والد سے ملیں۔ ان سے ملاقات بہت خوشی کا دن ہے۔ لاہور سے عاصم نصیر کی رپورٹ۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر نجی ایئر لائن سے براستہ دوحہ لندن روانہ ہوئی۔ روانگی سے پہلے والدہ اور دادی دادا کی قبر پر حاضری دی۔ مریم نواز نے ایئرپورٹ پر غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ انہیں والد سے ملنے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ سما سے گفتگو میں بولی، ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے، عمران خان فتنہ ہے، اس کا علاج رانا صاحب کو کرنا آتا ہے۔
मरियम नवाज एयरपोर्ट पर शहरियों से घुल मिल गयीं। बड़ी तादाद में मुसाफिरों और फजाई मेजबानों ने सेल्फियां बनाई और मरियम नवाज की तारीफ की। आपको देखा तो माशाल्लाह देखा उससे बहुत ज्यादा प्रीटी है। अच्छा, बस मुझसे रहा नहीं गया तो फिर वहाँ गई। नवाज शरीफ के जाती मुआलिक डॉक्टर अदनान भी मरियम नवाज के हमरा लंदन रवाना हुए हैं। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ आसिम नसीर, समा, लाहौर। आपको बताएं कि मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में लंदन जाने का जिक्र किया। उनका कहना था कि वो वालिद से मिलने लंदन जा रही हैं। मुल्क की सियासत में शेर फिर से धाड़ेगा, मुखालिफिन की ज़मानतें ज़ब्त होंगी। लीगी नायब सदर ने पार्टी के रोशन मुस्तकबिल की नवीद भी सुना दी। कहती हैं नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता अब साफ है, सिर्फ एक दरख्वास्त देनी है, वापस कब आना है ये फैसला नवाज शरीफ खुद करेंगे। नवाज शरीफ का रास्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ है, वो बहुत जल्द अपने वतन वापस आएंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द जा रही हूँ। पासपोर्ट मुझे आज मिल गया। मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा कि मैं कब जाऊँ और अपने वालिद से मिलूँ। इंशाअल्लाह फाइटिंग फिट होके आऊँगी और इस फितने का इंशाअल्लाह ताला कला कमा करेंगे। कि मैं नहीं चाहती कि वो तौहीन अदालत के मुकदमे में पकड़ा जाए। सब केसेस का बाप फॉरेन फंडिंग, इसके ऊपर बहुत संगीन किस्म के न सिर्फ इल्ज़ामात हैं बल्कि उन इल्ज़ामात के इतने बड़े बड़े सबूत मौजूद हैं कि ये दुनिया, पाकिस्तान क्या ये दुनिया की किसी अदालत से नहीं बच सकता। लेवल प्लेइंग फील्ड तो अभी हमें हुकूमत में रह के भी नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि एक शख्स जिसके जराइम से हाथ रंगे हुए हैं वो खुला फिर रहा है, ये नहीं हो सकता। नवाज शरीफ की ही आड़ में ये इसको सजा ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को झूठा तरीन शख्स करार दे दिया। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में कहा इमरान खान ने नातजुर्बाकारी में झूठ बोलकर मुल्की साख को नुकसान पहुंचाया। साजिश का बयानिया घड़कर अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की। इमरान खान दुनिया के सबसे बड़े झूठे और धोखेबाज हैं। इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद वो मुआशरे में मुसलसल जहर घोल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार द गार्डियन को इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि इन सब से मेरे मुल्क की साख को बहुत नुकसान पहुंचा है और ये मैं खुशी से नहीं बल्कि शर्मिंदगी और तशवीश से कह रहा हूँ। इमरान खान के झूठ के लिए ऑडियो लीक्स नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। इमरान खान हकाइक को तोड़ मड़ोड़ के नफरत पैदा कर रहे हैं। उन्होंने बगैर किसी वजह के अमरीका पाकिस्तान के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को तारीख का सबसे नातजर्बेकार, खुदगर्ज, अनापरस्त, नादान सियासतदान करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क को जाती एजेंडे के मुताबिक चला रहे हैं। सी पैक से मुतालिक बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सी पैक एक ऐसा मंसूबा है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए अच्छा है। वो नवंबर में चीन भी जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोरूसी सियासत के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए गार्डियन को बताया कि नवाज शरीफ उनके बड़े भाई और कायद हैं और वो हमेशा उनसे मशवरा करते हैं। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूँ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत कर दी है। पेशावर में पार्टी रहनुमाओं और ओहदेदारों से खिताब में इमरान खान ने कहा कि करप्ट टोले ने माजी में एनआरओ लेकर अपनी चोरियां माफ़ करवाईं। नैब पर अपना आदमी बिठा दिया ताकि मर्जी के फैसले करवा सकें। चोरी के तमाम केसेस माफ़ हो रहे हैं जो कौम के साथ मजाक है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया है कि इमरान खान का प्लान तैयार है तो हुकूमत का भी फार्मूला तैयार है। इस्लामाबाद पर हमले की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। आर्टिकल 245 के तहत फोर्सेस को फौरी तलब किया जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान आने वाले बने, उनकी भरपूर खातिर मदारत होगी। वो इस्लामाबाद पे हमलावर होना चाहते हैं, उनका जो इलाज है उसके लिए भी आज मैंने मीटिंग की है और बड़ा तसल्ली बख्श फार्मूला उनके लिए तैयार किया है। आर्टिकल 245 जो है उसके तहत भी हम जो है वो फोर्सेस को कॉल करेंगे। रेंजर्स भी होंगी, एफसी भी होगी, इस्लामाबाद पुलिस भी होगी, सिंध पुलिस भी होगी। यानी वो खातर जमा रखें, वो आने वाले बने, उनकी पूरी खातर मदारत होगी। वो जहाँ से निकलेंगे वहीं पे धकेल के आएंगे। इस फितने को कोई सपोर्ट नहीं है। पूरी कौम समझती है
کہ یہ آدمی جو ہے یہ ملک اور قوم کے جو ہے وہ نقصان میں ہے، یہ قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. اس فتنے کا کلا کوما جو ہے ابھی ہونا چاہیے. اور آپ کو یہ بتائیں کہ تحریک انصاف نے متوقع لانگ مارچ کے لیے پھر سے چندہ مانگنا شروع کر دیا ہے. فنڈز اکٹھا کرنے میں مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں. قذافی بٹ رپورٹ کریں گے. پیٹ ہی نہیں بھرتا اور کرنا ہے لانگ مارچ، وہ بھی چندے کے پیسے سے. پی ٹی آئی کی چندہ مہم پھر سے شروع. رہنماؤں نے فائنانسرز کی تلاش میں گھات لگا لی. پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق 12 ربیع الاول کے بعد متوقع لانگ مارچ کے لیے پارٹی قیادت کو خصوصی فنڈز اکٹھا کرنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں. پارٹی قائدین کو پی ٹی آئی تاجر ونگ اور ذیلی تنظیموں سے فنڈ وصول کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں، لیکن اس بار پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو بھی فنڈز دینا ہوں گے. قیادت نے فنڈز دینے والوں کی فہرست کی تیاری کی ہدایات بھی کر دی ہیں. فنڈز لانگ مارچ کے شرکا کے کھانے پینے اور پیٹرول کی مد میں اکٹھے کیے جا رہے ہیں. عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ پلے نی دھیلا گردی میلا میلا. تحریک انصاف چندہ مہم کی بجائے عوامی فلاح کی مہم پر دھیان دے. قذافی بٹ، سما، لاہور. گھبرانا نہیں کا سبق پڑھانے والے خود بری طرح گھبرا گئے ہیں. سازشیں گھڑ لی گئی، لیکن جب تدبیریں الٹی پڑنے لگی تو ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں. دھمکیوں سے مافیوں تک نوبت آ گئی، لیکن ڈھٹائی وہی پرانی. میجسٹریٹ صاحبہ، زیبا، آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے. آپ سب کو شرم آنی چاہیے. زیبا کو بتانا ہے کہ عمران خان آیا تھا، معذرت کرنا چاہتا تھا. کبھی گھبرانا نہیں ہے آپ سے. معذرت کرنا چاہتا تھا. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اگر اسی طرح آپ کرتے رہے آپ سب کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. کبھی گھبرانا نہیں ہے آپ سے. 4 مہینے سے میں صبر کر رہا ہوں. گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. میں جب چاہوں اسلام آباد کو بند کر سکتا ہوں. جتنا آپ کوشش کریں گے مجھے پریشر میں لا کے، ڈرا کے، دھمکا کے. کبھی گھبرانا نہیں ہے آپ سے. جو گھبرائے ہوئے وہ آج کل میں وہ ہوں. میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. گھبرانا نہیں. میں نے ایک کا نام لیا ہے اس ویڈیو میں. گھبرانا نہیں. میں نے اس لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا. اگر مجھے کچھ ہوا گھبرانا نہیں. یہ میرے پاس جو خط ہے یہ ثبوت ہے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. کوئی بھی شک کر رہے نا اس میرے خط کے اوپر، لیکن گھبرانا نہیں ہے. اب ہم نے صرف کھیلنا نام نہیں لینا. گھبرانا نہیں ہے آپ نے. اور پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بننے کے باوجود گرفتار ہو سکتے ہیں تو عمران خان کیوں نہیں؟ عمران خان کی جگہ بنی گالا نہیں اڈیالہ ہے. سما کو خصوصی انٹرویو میں حافظ حمداللہ نے کہا ہر ادارہ اپنی حدود میں کام کرے تو نواز شریف وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان صدر بن سکتے ہیں. جو نتائج وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لانگ مارچ سے، وہ نتائج وہ حاصل نہیں کر سکیں گے. ان کا بنیادی مقصد انتشار ہے، فساد ہے، افراتفری ہے. اب انتشار، فساد، افراتفری کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ میں اقتدار تک دوبارہ پہنچ سکوں. قانون بہت مضبوط ہے. اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے. یہ دونوں اسمبلیاں آپ ڈیزالو کر دیں، خود بخود الیکشن کا ماحول اور فضا سامنے آئے گا. پھر الیکشن سب کریں گے. این آر او تو آپ مانگ رہے ہیں. ایوان صدر میں جو آپ نے ملاقات کی، آپ کو این آر او نہیں ملے گی. آپ نے عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا. امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اسحاق ڈار کے آنے سے معیشت میں بہتری آئے گی. اور پوری حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں. ماضی میں جتنے بھی آرمی چیف گزرے، آئین کے مطابق، آرمی رولز کے مطابق تعیناتی کس نے کی؟ پرائم منسٹر نے. آج شہباز شریف وزیر اعظم ہے. یہ آئینی اور قانونی اور آرمی رولز کے مطابق وقت کے وزیر اعظم کی ثوابدید ہے. نواز شریف کا اپنا ملک ہے، وہ پاکستان آ سکتا ہے. 3 بار وہ وزیر اعظم رہے ہیں، اور وہی حیثیت جو 2017 جب وہ وزیر اعظم تھا، پارٹی ہیڈ تھا، وہ حیثیت تم نے نواز شریف کو دینا ہوگا. سیاسی صورتحال اسی طرح ہو کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں کام کرے، آئینی حدود میں، تو نواز شریف وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے پھر، اور مولانا فضل الرحمان صاحب صدر بھی بن سکتا ہے. نواز شریف 3 بار وزیر اعظم ہونے کے باوجود وہ گرفتار ہو سکتا ہے، تو عمران خان بھی ہو سکتا ہے.
रोडा की जानिब से मेहनत कश किसानों से ज़मीनें हथियाने का एक और वाक़या। रोडा ने अपने प्राइवेट गुंडों के जरिए मकामी किसानों को फसल काश्त करने पर तशद्दुद का निशाना बना डाला है। मकामी पटवारी इंतज़ामिया और पुलिस ने ग्रीन लैंड पर कब्जे की कोशिश की। रोडा इंतज़ामिया ने पुलिस की भारी नफरी बुला ली है। बात कर लेते हैं आसिम नसीर से। आसिम, बताइएगा सूरत हाल। जी बिल्कुल, रोडा की जानिब से किसानों की ना सिर्फ ज़मीन हथियाने का अभी भी सिलसिला जारी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पर कहा गया कि मजीद जमीन जो है वो एक्वायर नहीं की जाएगी और ना ही किसी तरह का कोई मनसूबा चलेगा। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त जो सूरत हाल है, जो रोडा की इंतजामिया है वो मुकामी प्राइवेट गुंडों और उसके अलावा पटवारियों और दीगर इंतजामिया और पुलिस के अमला इस वक्त जो है ग्रीन लैंड पर कब्जे कर रही है और उन्हें ग्रे लैंड शो करने के लिए किसानों के पर उन्होंने ना सिर्फ जो है उन्होंने तशद्दुद किया है, बल्कि ये लाहौर से का जो नवाई इलाका है नारंग मंडी, उससे पहले अयंगर कला है जो कि इस रूडा की जमीन के अंदर आता है, वहां पर ये कार्रवाई की गई है। और वहां पर जो है किसानों ने अपनी फसलें काश्त कर रहे थे, उन्हें फसल काश्त करने से रोका, हैवी मशीनरी लेके आए और वहां पर उन्होंने कहा कि अगर कोई भी काम करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और इस वक्त सूरत हाल इस वक्त भी ये है कि वहाँ पर मुकामी जो इंतजामिया है उन किसानों के अब घरों तक पहुंची है। उन्होंने कहा है कि आप जमीन फौरी तौर पर वहाँ से खाली करें और ये जो घर भी हैं देहात के इन्हें भी खाली करें, नहीं तो इन्हें हम बुलडोज कर देंगे। तो इस तरह जो रूडा की जो कार्रवाई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही और किसानों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो नोटिस लें और जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफवर्जी की गई है रूडा की जानिब से उस पर उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया आसिम नसीर आपका। रूडा मंसूबे में किसानों की सोने जैसी ज़मीनों को हथियाया जा रहा है। इमरान खान, बुशरा बीबी और उनके सहूलतकारों पर अरबों रुपए की किकबैक्स के इल्ज़ामात लग रहे हैं। इस पर नून लीग आवाज़ क्यों नहीं उठाती? समा ने मरियम नवाज से सवाल किया, जवाब मुलाहिजा कीजिए। लाहौर जहाँ पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, अभी इसके करीब ही रूडा का एक इतना बड़ा मंसूबा है जिसमें लोगों की 50 एकड़ अराज़ी 1,000 रुपये में हथियाई जा रही है पंजाब गवर्नमेंट और कहा जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है कि इमरान खान, बुशरा बीबी और उनके सहूलतकार दीगर कुछ सरमायाकार है तो उसमें किकबैक्स ले रहे हैं अरबों रुपए के हिसाब से। उस पर मुस्लिम नून क्यों नहीं आवाज उठाती? देखिए, मैं ईंट उठाओगे तो इमरान खान के करप्शन के सबूत मिलेंगे और वो इन्हीं सजाओं से बचने के लिए, उसको पता है कि उसने बहुत बड़े बड़े घपले किए हैं जिसके सबूत सबके पास मौजूद हैं, वो इन्हीं सजाओं से बचने के लिए जो उसने पीरनी और गोगी के साथ मिलकर घपले किए हुए हैं, इसी से बचने के लिए वो ये सब जो आज वो मीर जाफर, मीर सादिक, इनको छोड़ना नहीं, इनको मारना है और ये लॉन्ग मार्च करो और हमला करो, वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि वो अगर ये सब उसका नाकाम हो गया और ये उसके ड्रामे नाकाम हो गए तो कानून की गिरफ्त से वो ज्यादा दूर नहीं है। पंजाब हुकूमत और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन कहते हैं सीनियर सूबाई वजीर असलम इकबाल अपना गैर कानूनी कारोबार चमकाने के लिए इल्जामात न लगाएं। सूबाई वजीर असलम इकबाल और पंजाब हुकूमत की जानिब से सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ। डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स, पार्क व्यू सिटी के मकीन और ताजर सड़कों पर निकल आए। चेयरमैन विजन ग्रुप अलीम खान और सीईओ पार्क व्यू सिटी शुएब सिद्दीकी के हक में मुल्तान रोड के करीब रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था अलीम खान की सियासी वाबस्तगी से खौफजदा लोग रंग रंग की बोलियां बोल रहे हैं। विजन ग्रुप लाहौर के रोशन मुस्तकबिल का नाम है, हर साजिश नाकाम बनाएंगे। अब्दुल अलीम खान पर दहाइयों का एतमाद है, सब कुछ कानून के मुताबिक है तो गैर कानूनी कार्रवाइयाँ क्यों? ये जो गुंडागर्दी असलम इकबाल की तरफ से और जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी तरफ नाजायज़ गुंडागर्दी की जा रही है। यहाँ पे एक लीगल काम हो रहा है और हज़ारों घर और हज़ारों आबादी आबाद है इधर, तो उनका रोज़गार बंद करने की कोशिश की जा रही है, जानबूझ के हरासमेंट कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में पुलिस आती है, गुंडागर्दी जिसको मर्जी उठा के ले जाती है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। 15 से 20 हज़ार की आबादी है, तो खुदारा पंजाब गवर्नमेंट खुदा का खौफ करो, कुछ हुआ तो वो पंजाब गवर्नमेंट परवेज़ लाई, तुम जिम्मेदार होगे। हमने तमाम डीलर्स
यूनिटी ने और पार्क व्यू रेजिडेंट्स ने हम एक यूनिटी मार्च निकाला है। पार्क व्यू के रिहायशियों का कहना था सरकारी मशीनरी ने भारी नुकसान पहुंचाया, इंसाफ के लिए हर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का मंसूबा जहां गरीब किसानों की मईशत बर्बाद कर रहा है, वहीं मुस्तकबिल करीब में ये इंसानों के साथ साथ चरिंद परिंद और माहौल का सबसे बड़ा दुश्मन भी साबित होगा। माहिरीन इस हवाले से क्या पेशगोई कर रहे हैं, बता रही हैं आयशा अता। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कोई एक नहीं बल्कि अपने साथ बहुत से मसाइल लाएगा। आबादी के बढ़ जाने से इंसानों पर किस तरह से मनफी असरात मुरतब होंगे, आइए जानते हैं। हरी भरी फसलों को बंजर जमीनों में बदलने और ज़राई जमीनें हथियाने का मंसूबा, जिसे नाम दिया गया है रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। ज़ेरे ज़मीन पानी के माहिर कहते हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुस्तकबिल करीब में पानी की किल्लत का बाइस बनेगा। हमारा जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसकी क्वालिटी दिन ब दिन एक तो ख़राब हो रही है क्योंकि नेचुरल रिचार्ज नहीं हो रहा, और दूसरा हमारा पानी का लेवल जो है वो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 1 मीटर पर एनम यानी 1 मीटर पर सालाना के हिसाब से डाउन हो रहा है। लाहौर का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में होता है। माहिरीन माहौलियात कहते हैं नया शहर बसने, सनतों में इजाफे और हरियाली खत्म होने के बाइस लाहौर में माहौलियाती आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ सकती है। हमारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी वो डिस्टर्ब होगी। दूसरा हम इसमें बात कर सकते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन के लिहाज से ठीक है, ऑलरेडी हमारे जो है ना स्मोक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी यहाँ लाहौर के अंदर। प्रोजेक्ट शुरू होगा तो स्मोक की जो प्रॉब्लम है वो दोबारा से अराइज हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, हयातियाती तब्दीलियों के माहिर का कहना है नया लाहौर आबाद होने से इंसानों के साथ साथ आबी हयात, चरिंद परिंद को भी नुकसान होगा। ह्यूमन बीइंग के साथ साथ बहुत सारी और स्पीशीज़ हैं जो कि हमारे साथ को एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जब तक वो स्पीशीज़ हमारे साथ को एग्जिस्ट नहीं करेंगी, इकोसिस्टम इम्बैलेंस की तरफ चला जाएगा और हमारे लिए वो चीज़ बहुत नुकसानदेह होगी। माहौलियात, ज़ेरे ज़मीन पानी और हयातियाती तब्दीलियों के माहिरीन ने इस प्रोजेक्ट को किसी वीरान जगह आबाद करने का मशवरा दिया है। माहिरीन के मुताबिक पुराने लाहौर पर नया लाहौर बसाने का मंसूबा माहौल दुश्मन होने के साथ साथ किसानों का मुआशी कातिल भी है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल की सरपरस्ती में भाइयों का जुआ खाना पकड़ा गया। छापे के दौरान सूबाई वजीर के भाई को गिरफ्तार करने वाला SHO इंतकामी कार्रवाई का निशाना बन गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के सीनियर वजीर असलम इकबाल के भाइयों का जुआ खाना बेनकाब हो गया। चंद रोज कबल SHO समनाबाद शेख वकास ने इतला मिलने पर जुए खाने पर छापा मारा और सूबाई वजीर के भाई बिल्लू को ऑनलाइन जुए के सामान समेत गिरफ्तार करके थाना ले गया। असलम इकबाल के 2 भाई आशिक और भोला अपने भाई बिल्लू को छुड़ाने थाने पहुँचे। दोनों ने हंगामा राई की तो पुलिस ने बिल्लू समेत तीनों को हवालात में बंद कर दिया। SHO शेख वकास ने तीनों की जुआ खाना चलाने की एतराफी वीडियो भी बना ली। साफ चली शफाफ चली का नारा लगाने वाले मियां असलम इकबाल ने इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी। भाइयों को लताड़ने की बजाय SHO को वीडियो डिलीट करने का हुक्म दिया। इनकार पर CCPO से कहकर भाइयों की जान छुड़ाई और शेख वकास को मुअत्तल करा दिया। शेख वकास को मुअत्तल कराने के लिए मियां असलम इकबाल ने SP ऑपरेशंस इकबाल टाउन अमारा शिराजी से जाली रिपोर्ट बनवाकर शेख वकास को मुअत्तल कराया। जहांगीर खान, समा, लाहौर। आपको बताएं कि सूबाई वजीर असलम इकबाल के मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से जमा कराई गई है। करारदाद में कहा गया है कि असलम इकबाल अपने कब्जा ग्रुप और जुआ कराने वाले भाइयों को बचाने के लिए पुलिस अफसरान पर दबाव डाल रहे हैं। मियां असलम इकबाल के भाई भोला और आशिक समनाबाद में ऑनलाइन जुए का अड्डा चलाते हैं, जबकि SHO समनाबाद शेख ने मियां असलम के भाइयों को गिरफ्तार किया, जिस पर मियां असलम इकबाल ने CCPO लाहौर पर दबाव डाल के SHO समनाबाद को मुअत्तल करवा दिया। करारदाद में IG पंजाब से मामले की शफाफ इंक्वायरी और मियां असलम इकबाल से इंक्वायरी मुकम्मल होने तक ओहदे से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया है।
वज़ीर आला परवेज़ इलाही की अपने बेटे मोनिस इलाही पर फंड्स की बारिश। तहरीक इंसाफ के अरकान को फंड्स मिले ना मिले, मोनिस इलाही के हल्का N69 को अरबों रुपए का तरक्याती पैकेज मिल गया है। 30 अरब रुपए के ग्रांट दी जाएगी। बात कर लेते हैं कज़ाफ़ी बट से। कज़ाफ़ी, आगाह कीजिएगा इस बारे में। बिल्कुल जी, इनके हल्के के लिए 30 अरब से ज़ायद की ग्रांट जो है वो दी जा रही है। हालांकि किसी भी रुकने असेंबली को अब तक इतनी ग्रांट नहीं दी गई है। जो 30 अरब रुपए से ज़ायद की ग्रांट है ये 108 तरक्याती स्कीमों के लिए दी जा रही है। सबसे ज्यादा जो फंड्स हैं वो सड़कों की तामीर पर खर्च किए जाएंगे। 17 अरब रुपए जो है वो हल्के के सड़कों के मंसूबों के लिए रखे गए हैं, जबकि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के लिए 2 अरब 63 करोड़ की रकम रखी गई है, जबकि आईडी अथॉरिटी के लिए 10 अरब 91 करोड़ की ग्रांट दी जा रही है। और इस ग्रांट के ऊपर जो है तहरीक इंसाफ के हल्कों में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी पाए जा रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो सबसे ज्यादा जो तवज्जो दे रहे हैं वो अपने बेटे के हल्के और अपने हल्के पर दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट आपका। अहम मामला तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक से इमरान खान के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मांग ली हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, तोशा खाना केस इमरान खान के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब की गई हैं। स्टेट बैंक से इमरान खान के अकाउंट्स की तफसीलात मांगी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक को इस हवाले से खत लिखा है। इलेक्शन कमीशन तफसीलात का जायजा लेकर महफूज फैसला सुनाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। माहिर डॉक्टर्स की टीम आसिफ अली जरदारी की सेहत का मुआयना कर रही है। तो आपको ये बताते चलें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। डॉक्टर आसिम हुसैन खुद आसिफ अली जरदारी के मेडिकल बोर्ड का हिस्सा है। अस्पताल में साबिक सदर से मुलाकात की पार्टी रहनुमाओं को इजाज़त नहीं है। आसिफ अली जरदारी के सीने में तकलीफ और खांसी बदस्तूर बरकरार है। डॉक्टर्स की जानिब से ये भी कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी को फौरी तौर पर बैरून मुल्क इलाज की ज़रूरत नहीं है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। आसिफ अली जरदारी को फौरी बैरून मुल्क इलाज की ज़रूरत नहीं है। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संजय, आसिफ अली जरदारी की हालत के हवाले से डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत कुछ बेहतर हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनका इलाज जारी है, लेकिन बाहर उन्हें मुंतकिल करने की फौरी तौर पर ज़रूरत नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ कुछ चैनल्स पर यह खबर चली कि उन्हें एयर एम्बुलेंस के ज़रिए बाहर मुंतकिल किया जाएगा। तो हमारी जब डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर आसिम की सरबराही में मेडिकल टीम आसिफ अली जरदारी का तिबी मुआयना कर रही है। दुबई से 2 स्पेशल डॉक्टर आसिफ अली जरदारी का जो माजी में इलाज करते रहे वो आए थे खसूसी तैयारी के जरिए। उन्होंने इलाज किया है और बताया है कि सीने में थोड़ी तकलीफ है और जो कुछ अमराज थे जिनके मेडिकल टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद ये डॉक्टर्स की जानिब से मशवरा दिया गया है कि फौरी तौर पर बाहर मुंतकिल होने की ज़रूरत नहीं है। आप पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो करीबी आसिफ अली जरदारी के खानदान के लोग हैं वो फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका। सिंध के कई इलाकों में निकासी याफ्ता हाल मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। बारिश और सैलाब के बायस लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। दादू में सफ़ेद पोश काश्तकार सड़कों पर आ गए हैं। टंडोआला आयार में मकीन खुले आसमान तले आ गए। बारिश और सैलाब को कई हफ्ते बीत गए, मगर जिला मटियारी के 18 यूनियन कौंसिल से पानी ताहाल न निकाला जा सका। 1 लाख एकड़ से ज़ायद राजी पर कायम केले की फसल मुकम्मल तबाह हो गई। आबादकार फसलों से पानी निकालने के लिए मशीनें और तेल भी खुद खरीदने पर मजबूर हैं। दादू में भी बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई हुई है। घर, ज़मीन बोस और फसलें मुकम्मल तबाह हो गई। टंडोआला यार में गांव साहिब डेनो शेख का ज़मीनी राब्ता 2 माह से मुनक़ते है। इलाके में कश्तियाँ चल रही है, घर डूबे हुए हैं। मकीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं, मगर ज़िली इंतज़ामिया अब तक पानी की निकासी नहीं कर सकी। आपको बता दें कि सिंध में जैकबाबाद के नवाही गांव खुदा बख्श भट्टी में अभी तक 4 से 5 फुट तक पानी खड़ा हुआ है। इंतज़ामिया की जानिब से पानी की निकासी का काम शुरू नहीं किया जा सका है। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुश्ताक खरानी। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकबाबाद के नवाई गांव खुदा बख्श भट्टी में। बारिश को रोके 1.5 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। उसके बावजूद जो है इस गांव में 4 से 5 फीट पानी जमा है, जिससे जो है यहाँ के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के मकीन नकल मकानी करके जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक मुतासिर मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करेंगे। जी, आप हम बताएँ कि यहाँ पर 4 से 5 फीट पानी जमा है, आप लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है? बस मुश्किल ये बताते जाते हैं, पानी में कोई मदद नहीं कर रहा है, न कोई राशन मिल रहा है, न कोई टाइम
टेंटे मिल रहे हैं, हम बैठे हुए हैं रोड पर, कुछ भी नहीं मिल रहा है हमको। हम ऐसे पड़े हुए हैं, 4-5 फुट पानी खड़ा हुआ है घर में, कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। जी, जैसा कि आपने मुतासरीन की बातें सुनी, इनका कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अब तक पानी की निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। इन्होंने हुकूमत सिंध और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस गाँव का जो है पानी निकाला जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। खेल की बात करेंगे। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम कल से सफरी की सीरीज़ की तैयारियों का आगाज करेगी। कौमी टीम क्राइस्ट चर्च में मौजूद है, जहां वो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ T20 सफरी की सीरीज़ में हिस्सा लेगी। क्राइस्ट चर्च में तीनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई की है। पाकिस्तान टीम आज होटल में आराम करेगी, जबकि क्राइस्ट चर्च में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। खिलाड़ियों का कल का प्रैक्टिस सेशन भी मुतासर होने का खदशा है, जबकि सफरी की सीरीज़ का पहला मैच जुम्मे के रोज़ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।